Uh, just Okay. message if something is up. Is it live? Yeah. Hey everyone. Yeah, hey everyone. Welcome to the BitBNS channel, and we have here with us Gaurav Dahake, the CEO of BitBNS, and my name is Sanket. I am a market analyst at BitBNS. So here today we're going to talk about the whole the Terra ecosystem saga, what happened with it, a little bit about market analysis, how is it related to the stock market, and going forward, what else can we see in this whole crypto space? हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. Over to you, Gaurav. Yeah. So hi everyone. Sorry that we had to cut off the stream. तब आवाज नहीं आ रही थी. Hopefully अभी आवाज clear है और सब लोग सुन पा रहे हैं. So we'll cover most different sort of aspects. मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बस chat में hi yes लिख दीजिए. हाँ, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. तो वही है, मार्केट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, लूना इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ. लूना जो एक कॉइन था वो $100 का होता था एक दो हफ्ते पहले, वो $100 से भी $1 से भी नीचे गया था आज. तो एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे. लूना वर्क कैसे करता है, उसका एक स्टेबल कॉइन होता है यूएसटी, वो कैसे वर्क करता है, उसे मिंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद जनरल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा है, रुख कैसा है. फेडरल रिजर्व के एक्शंस पे भी चीजें डिपेंड करती है, स्टॉक मार्केट पे भी चीजें डिपेंड करती है, और वो क्यों डिपेंड करती है. पहले स्टॉक मार्केट से अनकोरिलेटेड होता था क्रिप्टो, अब क्यों कोरिलेट हो रहा है. बाकी स्टेबल कॉइन्स आपके सेफ है या नहीं, यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीयूएसडी या जो भी अलग अलग स्टेबल कॉइन्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत टच करेंगे. एंड फिर बाकी जनरिक क्वेश्चंस भी लेंगे, कुछ बीएनएस के ऊपर भी कोई क्वेश्चंस है दैट आल्सो विल सॉर्ट ऑफ टेक, और इंडियन टैक्सेशन वगैरह वो ब्रीफली कवर करेंगे, वो लास्ट 10-15 मिनट्स में विल सॉर्ट ऑफ कवर. सो शुरू करते हैं. संकेत वुड सॉर्ट ऑफ गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू अराउंड द लूना इकोसिस्टम. हाउ डज Terra, Luna as an ecosystem work? UST क्या है? What is Luna? How does UST get minted? How does it get redeemed? And overall sort of synopsis around what exactly happened. Okay. शुरू करने के we have currently three type of main categories in the stablecoin system. पहले होता है your one-to-one issuance and redeeming, where think of it like a vending machine. जब आप $1 अंदर डालोगे, एक USDT ऐसा एक टोकन का बाहर आ जाएगा. So वापस डालेंगे तो $1 आएगा. So that is how it works. So currently that is like a bit of a centralized system. So you have USDT, you have USDC, Circle का है, one is Tether. Now you have the other type that is over collateralized. जो भी आप यहाँ पर fairly simple होता है कि आप, let us say if you want to mint $1 worth of an asset, you're ideally providing थोड़ा उसके $1 से थोड़ा ज्यादा collateral. So you have like for $1 you'll be providing $1.5 worth of the other asset. So the most popular one here is DAI, where at least initially it was how it was pegged as $1 बनाने, एक DAI बनाने के लिए and equivalent or $1.5 worth of ether was locked up. So that is another system, and now we have a new one, relatively new one, that is the algorithmic stablecoin. So यहाँ पर क्या होता है कि there are two coins. One होता है your stable coin and the other one is meant to absorb your volatility.
तो यूएसटी यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन है, एंड let us say that the price of Luna is currently $100. अभी कुछ दिनों के पहले था. तो आपको एक $100 मिंट करना है या $1 मिंट करना है. यूड बी बर्निंग. तो एक एएमएम आता था, दैट इज हाउ द प्रोटोकॉल इज बिल्ट. एएमएम में आप बेचते 0.1 लोना एंड यू वुड गेट 1 USD, या एक लोना बेच दिए तो you'll get 100 USD. So that is how you're able to create the USD supply. On the reverse side, it would be to mint one Luna, you'd burn 100 USD, and इधर से एक Luna आ जाएगा. So that is basically the general of how it was done. तो आप तो सुने ही होंगे that it was a very popular protocol. It still is. Everybody's been talking about it fairly for the last 1 week. तो क्या हुआ था यहाँ पर? Again, the details still are being decrypted, but on a general level, तो when लाइक थोड़ा एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ. तो नॉर्मली स्टेबल कॉइन्स की शुरुआत क्रिप्टो में इसीलिए हुई थी बिकॉज बैंकिंग का इशू होता है. तो जैसे आपको भी यूजुअली देखा जाता है इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम में भी आपको अगर पैसे डिपॉजिट करने होते तो काफी एक्सचेंजेस पे आपको दिक्कतें फेस होती है. जैसे कॉइनबेस रिसेंटली यूपीआई उनका बंद हो गया. काफी एक्सचेंजेस पे नॉर्मली इश्यूज होते रहता है. तो दिस इज बिकॉज बैंक्स इतने सीमलेसली वर्क नहीं करते. ये बाहर भी यही सिचुएशन था पहले यूएस वगैरह में. तो दिस इज व्हेन स्टेबल कॉइन का एक कंसेप्ट सोचा गया कि यार स्टेबल कॉइन वुड बेसिकली हेल्प bridge that continuous movement that kind of usually keeps happening. So 2014 में first time stable coin के बारे में सोचा गया. This was done by a company called Tether. And Tether is the same company that is behind Bitfinex. Bitfinex used to be the largest crypto exchange till 2017. It's still one of the largest crypto exchanges and has really large liquidity around Bitcoin and Ethereum. तो टेदर ने ये बनाया है. टेदर sort of started this in 2014 and इसीलिए उनके जो USDT आप देखते हो that is basically USD टेदर. वो टेदर का मतलब होता है कि आप एक चीज को किसी दूसरी चीज से आंक देते हो. मतलब बेसिकली इट इज टेदर्ड टू द समथिंग एल्स. सो वो एक चीज दूसरे चीज से बांधी गई है. दिस इज बेसिकली ये यूएस डॉलर से बांधा गया है. तो एक USDT इज इक्वल टू 1 USD. सो बट अदर यूएसडीसी ये जो है ये सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स है. जैसे संकेत ने काफी बखूबी बताया कि ये वेंडिंग मशीन के टाइप ऑपरेट करते हैं. जितना आप रुपीज और या डॉलर्स उसमें डिपॉजिट करोगे उतने वो मिंट हो जाएंगे और जितने यूएसडीटी वापस भेजोगे उतना आपको डॉलर वापस मिलेगा. सो दिस वाज द नीड फॉर क्रिएटिंग अ स्टेबल कॉइन. नाउ इस बेसिस पे जब हमें पता चलता है कि यार स्टेबल कॉइन की नीड क्यों है, फिर हम आते हैं कि वाई सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन के बाद डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स क्यों है, राइट. सो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स पे रेस्ट्रिक्शंस है. वहां पे एक सेंट्रल पार्टी अगर गलत काम करती है, जैसे टेदर के बारे में काफी बार ये फड़ आ चुका है कि टेदर के पास एक्चुअल डिपॉजिट है नहीं, या फिर अगर वहां पे कोई इशू होता है. फॉर एग्जांपल जो आपका सर्कुलेटिंग कॉइन है वो किसी कंट्री के थ्रू होता है. सपोज यूक्रेन के किसी फाउंडर ने बनाया होता और यूक्रेन सपोज वॉर पे गया है, राइट, और उनके ऊपर कोई सैंक्शन आ जाता तो ये कॉइन ऑपरेट करने में या मूवमेंट ऑफ दिस कॉइन पे काफी रेस्ट्रिक्शन आ सकते थे और ये आगे चल के भी आ सकते हैं. जियोपॉलिटिकल रिस्क सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज पे हमेशा रहती है. तो जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, इन सब एंटिटीज को बोला गया था कि रशियन अकाउंट्स अगर उनके एक्सचेंज पे है उन्हें सर्टेन अकाउंट्स फ्रीज करने होंगे और वो बैलेंसेस लॉक कर देने होंगे. तो एज अ यूजर जो क्रिप्टो का बेसिक इथोस है या बेसिक जेनेसिस है वो ये कहता है कि you should have freedom of your own money. You should be able to move your money when you want it, how you want it, and you should be able to earn interest, deposit, trade, sell, buy, do any activity with your money. This is why centralized stable coins से decentralized stable coins के बारे में सोचा गया, जिसका पहला इटरेशन दाई था. दाई का जैसे बताया गया कि ओवर कोलैटरलाइज किया जाता है तो उसके कारण उसका पैक मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है. उसके बाद बहुत सारे
अलग अलग अटेम्प्ट्स हुए, ओलंपस डाओ एक था, फ्रैक्स फाइनेंस था, बहुत सारे अलग अलग अटेम्प्ट्स हुए इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट स्टेबल कॉइन्स, जिसमें से सबसे फास्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ा जो हुआ वो टेरा लूना था। लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर के सर्कुलेशन तक ये पहुंच गया था विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 18 टू 20 मंथ्स। और लूना का कॉइन प्राइस भी उसी दौरान काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, 0.4 $0.5 से लेकर इट वेंट टू $120। तो काफी लोगों ने लूना पे अर्न भी किया है, लूना के ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी किया है, एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम हैव आल्सो लॉस्ट मनी रिसेंटली विद व्हाट हैज हैपेंड। तो ये थोड़ा आकलन करने की कोशिश करता है कि लूना इकोसिस्टम में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो आइडियली जो आपके आसपास की दुनिया है वो ऐसे वर्क करती है कि इट इज एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में ये होता है कि पैसा सिस्टम के अंदर हमेशा लॉन्गर टाइम स्केल में बढ़ते रहता है, इसीलिए आपके चीजों के रेट्स जो होते हैं, जो कमोडिटी वाले जैसे चीजें हैं जिनके सप्लाई कम होता है, वो हमेशा बढ़ते जाता है। जैसे दूध हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या फिर एनी ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ कमोडिटीज व्हिच आर लिमिटेड इन सप्लाई, द कॉस्ट ऑफ दोस थिंग्स कीप इंक्रीजिंग। ये उन चीजों के रेट्स नहीं बनेंगे जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलो समथिंग कॉल्ड एज मूर्स लॉ, तो एक्सपोनेंशियली उसकी प्राइस डिक्रीज होती है। तो जहां पे एक ट्रांजिस्टर लगता था वहां पे अभी 10 to the power लाइक 50 ट्रांजिस्टर उसी जगह में लगता है। सो दैट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, तो वो कॉस्ट को पैर ऑफ कर देता है। बट जो कमोडिटी वाली चीजें होती है इनकी प्राइस हमेशा बढ़ती है, सिस्टम का पैसा हमेशा बढ़ते जाता है। तो जितना पैसा इंडिया एज एन इकोनॉमी में था 10 साल पहले, वो 2021 में उससे ज्यादा है, 2011 में उससे कम था, 2001 में उससे कम था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इकोनॉमी ग्लोबली। उसी के बेसिस पे ये स्टेबल कॉइन का एक डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम बनाने की कोशिश की गई है, जहां पे ये कहा गया है कि जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी आप उसे लूना को बर्न करके आप एक स्टेबल कॉइन मिंट कर पाओगे, जो आप स्टेबल कॉइन कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर डिमांड कम होती है तो आप उसे रिवर्स कर दो कि आपके यूएसटी या फिर जो भी स्टेबल कॉइन है उसको बर्न करके आप लूना वापस ले सकते हो। तो this was the entire mechanism. Overall hypothesis was कि यार हमेशा डिमांड फॉर अ स्टेबल कॉइन इंक्रीज होती जाएगी। ये डिमांड इंक्रीज करने के लिए इन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बनाई थी विच इज कॉल्ड एंकर प्रोटोकॉल। एंकर प्रोटोकॉल के बारे में आते हैं, मैकेनिज्म के बारे में आते हैं, क्यों वो काफी लोग इसे पॉन्जियोमिक्स टाइप बोलते हैं, क्यों वो सब भी डिस्कस करते हैं। विल सॉर्ट ऑफ देन गो डीपर कि यार ये क्या हुआ, ये बीटीसी बाइंग वगैरह बीच में कुछ हुई थी, वो क्या हुआ, एंड विल अंडरस्टैंड डीपर। Yeah, definitely. So, थोड़ा how exactly टेरा इकोसिस्टम ने एक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स ट्राई किए, वो बहुत ही अच्छा है। मेनली दे ट्राई टू क्रिएट यूज केसेस फॉर द टेरा कॉइन यूएसडीटी। तो वहां पर क्या हुआ कि दे क्रिएटेड 3-4 प्रोटोकॉल्स, दिस इज फ्रॉम द मेन टीम। तो एक हो गया आपका एंकर प्रोटोकॉल, एंड देन यू हैव मिरर प्रोटोकॉल, एंड एक पाइलॉन प्रोटोकॉल। तो ये सब, the way it is designed is it is easy to use and it earns interest to the user. शुरू कर से मिरर से, मिरर was like a exposure to stock market। तो अभी क्या होता है कि आपको ही ले लीजिए दैट इंडिया में पीपल वांट टू बाय टेस्ला स्टॉक, बट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यूजिंग दिस मिरर प्रोटोकॉल यू कैन बाय इट। तो वहां पर क्या करते थे कि एक शॉर्ट करने का ऑप्शन देते, लॉन्ग करने का ऑप्शन देते हैं, एंड बोथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड एंटर दैट एंड इट वुड ट्राई टू मिरर द asset price of Tesla as closely as possible. So that is the mechanism behind it, and based on popularity, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को ऐड करना शुरू किए। गूगल हो गया था, अल्फाबेट वाज गूगल, एंड आर्क, then you have Microsoft, Apple, all the top this thing, and it was a fairly efficient system.
एंड उसके बाद एक एंकर, फर्स्ट मिरर आया था, उसके बाद एंकर आया था. एंकर का फेयरली सिंपल था, एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर डिपॉजिटिंग. इट वुड बी, हे आप डिपॉजिट कीजिए, बोलिए $1,000, एंड आपको 19% APR हम देंगे. एंड इसके लिए कुछ लॉक इन नहीं था. तो आप, इफ यू पुट इन $1,000, एक साल के बाद, या इट स्टार्ट्स अकरिंग एवरी 5-6 seconds per block, एंड एक साल के बाद यू वुड हैव $190 फॉर दैट. तो दिस वाज द लेंडर्स पर्सपेक्टिव. अभी बोरोइंग साइड से हाउ एग्जैक्टली उसको जनरेट किए थे, दैट वुड बी लाइक, दो चीज में स्प्लिट किए थे. वन वुड बी ओ लूना. लूना के लिए यूज केस बनाए उन्होंने. लूना को एक बॉन्ड करते थे, बॉन्डिंग मीनिंग वन लूना इक्वल टू वन बी लूना, ऐसा करके दे वुड इशू एन IOU फॉर यू that your Luna is with us. You can redeem it whenever you want, but we will hold it for now. तो ये होल्ड करके they would stake it. तो टेरा इकोसिस्टम इज अ प्रूफ ऑफ स्टेक चेन, जहां पर आप टेरा लूना को स्टेक कीजिए, तो देन यू कैन अर्न सम यील्ड्स फ्रॉम इट अप टू 10%. सो दिस यील्ड ऑल्सो एडेड टू दैट एंकर का रिकवरी के लिए. तो अज्यूम कीजिए कि अभी लूना का प्राइस $100 है, एंड अभी आप उसे बॉन्ड कर रहे हैं बी लूना से. उसके ऊपर you can borrow some capital that would be up to 50 or 70%. So you can borrow, let's say, up to $50, 50 USD. तो लोग क्या करते थे कि when they are very bullish, लूना को बॉन्ड करते थे, उसके ऊपर बोरो करते थे, और उसे जाके एंकर के ऊपर ही they would lend it again. So it was like a, but again, it would be only 50%. But this kept on going. And how the protocol generated yield was, ये जो लोग जो भी बोरो करते थे उस पे 25% रिटर्न करना पड़ता था USDT. If you had borrowed $100, by the end of 1 year, it would be like you'd be paying back $25. And one more this thing is, ऑन योर स्टेकिंग, तो आप लूना को दे दिए, उसके 10% जो भी आता था वो भी उन्हीं पर के पास जाता था. सो दैट वे दे वर एबल टू हैव अ यील्ड एंड मेंटेन द पेग. पर अभी इसमें एक थोड़ा सा कमजोरी है, दैट वुड बी व्हेन द प्राइस ऑफ लूना गोज डाउन. That is where this sort of issue kind of starts. आप समझ, like let us take an example where Luna is 100 at price right now, $100, and you are thinking, ठीक है अभी Luna ऊपर ही जाएगा, तो मैं थोड़ा borrow करके I will get more interest on it. But market condition kind of pushed it down. Now it goes down to, let's say, $50. So by default, your Luna would be liquidated, meaning it would be sold at market price. तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा. So when you sell at market price, price keeps falling more and more. So that way क्या होता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये लिक्विडेशन इवेंट हो जाता था, and price of Luna started going more and more down. Now USD का, when people have a little bit of false belief, or at least they are in the assumption that Luna is backing directly USD. But when the price of Luna is going down, people start to lose little fear. And what they try to do is, ठीक है, I will just exit from here. And थोड़ा वो $1 से थोड़ा नीचे जाता है. And when enough number of people start doing this, वो peg बहुत नीचे से नीचे जाता है. And here we have something called an effect of bank run, where a lot of people come together at the same time and पैसे निकालने का try करते हैं. And here it is when there is a negative feedback loop start होता है, जहाँ पर लूना का प्राइस बहुत नीचे जाता है, एंड USD को लोग एग्जिट करने के लिए दे जस्ट बर्न इट, एंड मोर लूना इज क्रिएटेड वेयर द प्राइस और नीचे जाता है,
और ये cycle ऐसा it's called a death spiral also. So this is basically what happened, and it is still playing out as we speak right now. The peg is not yet back to $1. It is currently sitting at 50 cents. So assuming that all the people who want to exit this ecosystem would exit soon, and then the depegging would slowly come back up. Maybe it would take another week or so if it is able to recover. Anything you want to add there, Garo? Yeah, so ये basically जैसे Luna as a stable coin is far more volatile than say Bitcoin, right? So इसी के अराउंड इन्होंने दो महीने पहले एक पहल रखी थी which was the LFG Luna Foundation card, which said कि instead of kind of just having Luna as a reserve to sort of stop this depegging mechanism, हम लोग बिटकॉइन को भी रिजर्व रखते हैं और बिटकॉइन से वो किया जाएगा। तो जो बिटकॉइन का मूव हुआ था $34,000 से $47,000, इसमें काफी ज्यादा बाइंग LFG के थ्रू हुई थी और वो काफी एक कंसिस्टेंट बाय होते जा रहा था, जिसके कारण मार्केट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड गोइंग अप। अप्रैल के स्टार्ट तक आपने ये देखा होगा कि 2-2.5-3 बिलियन का बाइंग हुआ था और वो मार्केट सॉर्ट ऑफ वेंट अप, और जैसे ही बाइंग रुकी मार्केट सॉर्ट ऑफ वेंट बैक। तो ये मैकेनिज्म सोचा गया था, बट इनको वो पूरा एक्टिवेट करके उसको ऑन-चेन लिक्विडेशन ये सब करने का टाइम नहीं मिला और उसके पहले ही ये डीपैकिंग वाली चीज शुरू हो गई। अब लूना के पास 2-3 ही ऑप्शंस है। बेसिकली ये होगा कि जो यूएसटी जब तक सेलर्स एग्जॉस्ट नहीं होते, जितने भी सेलर्स को निकलना है बेचकर, जब तक वो नहीं होगा तब तक पैग रिस्टोर नहीं हो सकता। पैग रिस्टोर होने के लिए लूना बिकते जाएगा। दे कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लूना इन सर्कुलेशन। तो लूना का जो प्राइस है वो और नीचे जाने की और नीचे जा सकता है जब लूना बेसिकली पैग रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। जब वो पैग रिस्टोर होगा तभी मतलब एक कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हो सकती है लूना की। बट अभी जो भी मूवमेंट्स होंगे अप या डाउन लूना के, दोज वुड बी मोर बेस्ड ऑन जस्ट ट्रेडिंग या फिर लिक्विडेशंस। बहुत ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहे थे और रिसेंटली कुछ लोगों ने बाय कर दिया, तो कुछ शॉर्ट ट्रिगर होकर लूना वेंट फ्रॉम $0.6 to $4.5. It again went to $2.5. So ये काफी फ्लक्चुएशन होते रहेगा। It is not very sensible to catch the bottom right now because we are not sure कि bottom कहाँ होगा। bottom $1 भी हो सकता है, $0.1 भी हो सकता है, $0.01 भी हो सकता है, because लूना का सर्कुलेशन बढ़ सकता है जब तक वो पैग रिस्टोर नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। और लूना के बारे में ये सब है। हम क्वेश्चंस भी लेंगे। विल आल्सो टॉक अबाउट द ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस। ब्रॉडर मार्केट में ये हो रहा है कि 2022 में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, because from 2020 to 2021 end there was an obscene amount of money that was printed। 40% ऑफ जितने भी यूएस डॉलर सर्कुलेशन में थे वो उस 18-19 मंथ्स के स्पैन में आए थे, बिकॉज ऑफ विच द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, and the Russia war basically was a fillip to sort of increase the prices even further, क्योंकि Russia is one of the major exporter of oil and natural gas globally। तो चीजों की प्राइस बढ़ते जाती है। जब भी हम नोटिस करते हैं किंगडम्स या फिर कंट्रीज ये सब तब तबाह होते हैं जब लोगों को खाने के प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब जब लोग बेसिकली अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाते, even when they are working hard, even when they are doing their duties properly, that's when kingdoms get disrupted। तो लीबिया में जो 2012 में तहरीर स्क्वायर पे हुआ, या फिर इसके पहले लेबनान, बहुत सारे कंट्रीज में हो चुका है। So this unrest happens when people find it difficult to even sort of make for their own food। ये इन्फ्लेशन का पार्ट है। जैसे इन्फ्लेशन एक सर्टन अमाउंट के बाहर स्पाइरल ऑफ होता है, this is why when it becomes very imperative कि गवर्नमेंट्स try and control inflation। तो अभी उसके अराउंड ही कुछ चीजें हो रही है।
तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कुछ वेज होते हैं जहां पे सर्कुलेशन ऑफ मनी कम किया जाता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी कम करने वाली चीज पहली बार हो रही है। दिस यूजुअली नेवर हैपेंस। सो एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि अपने आसपास की सारी चीज इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है। दो टाइप्स की इकोनॉमी होती है, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी। 2020 तक डिफ्लेशनरी इकोनॉमी होती थी जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी। तो गोल्ड का सर्कुलेशन लिमिटेड है, तो गोल्ड के बेसिस पे पैसा मिंट होता था। और इसी कारण ये होता था कि कंट्रीज उतने फास्ट प्रोग्रेस नहीं करते थे। और इसीलिए 2029 में जो डिप्रेशन बोलते हैं, दैट वाज अ वेरी लार्ज डिप्रेशन फॉर 9 years from 1920 to 1929। दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के बेसिस पे पैसा मिंट हो रहा है। गोल्ड आप किसी को देना नहीं चाहोगे क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप किसी को गोल्ड देना नहीं चाहते हो, गोल्ड किसी को दोगे नहीं तो वो उसे लेकर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। तो वो बोरो वाला इकोनॉमी लाइक स्ट्रैंगल ऑफ हो गया। तो बोरो नहीं हो पा रहा है, बोरो नहीं हो पा रहा है तो नई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। On the other hand, when the borrowing becomes really easy, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और बहुत ज्यादा गलत इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, जो कि 2020-21 में हमने देखा है। तो इसमें काफी वैसी चीजें भी होने लगती है जहां पर काफी डेड कंपनीज अपने को रीब्रांड करते हैं, वहां पैसा खर्च करते हैं। देर इज रैंडम एक्सप्लोजन इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, सैलरीज गो थ्रू द रूफ। तो काफी गलत अपॉर्चनिंग भी होने लगती है। सो ये सारी चीजें होती है, ये इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। और वो कोर्स करेक्शन होता है टिपिकली, बहुत ज्यादा एक्सपांशन जब होता है उसके बाद कोर्स करेक्शन होता है। तो जैसे हमने ये देखा है कि अब वो कोर्स करेक्शन हो रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। इस चीज को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग इसके पहले होता था। क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर 2008, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जब लीमन ब्रदर्स, गोल्डमैन सैक्स, ये सब बैंक्स को बेल आउट करना पड़ा, तब से क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू हुआ है। उसके बाद कोविड के बाद इट वेंट रियली हाई अप, और अब टाइटनिंग शुरू हो रही है। टाइटनिंग में मनी गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम, दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। तो एक तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जाते हैं ताकि बोरोइंग हार्ड हो जाए। बोरोइंग हार्ड होगी तो फिर बेसिकली मनी एक्सपांशन सॉर्ट ऑफ रिड्यूसेस। मनी एक्सपांशन इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि बोरोइंग इस वे से वर्क करती है, अगर आप 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक 100 रुपए के बदले 1000 रुपए किसी को लोन देती है। सो दिस इज बेसिकली हाउ इकोनॉमी वर्क्स। इस चीज को M1 मनी सप्लाई बोलते हैं। M0 इज द बेस लेयर ऑफ मनी। तो इस वजह से मॉनेटरी सप्लाई इंक्रीज होती है। जब अब बोरो रेट अगर इंक्रीज कर दिया तो कम लोग बोरो करेंगे, कम मनी सप्लाई मार्केट में आएगा। तो बेसिकली रेट्स कम मनी सप्लाई आएगा तो कम मनी सर्टन गुड्स को चेस करेगा। तो बेसिकली पहले ज्यादा मनी चेस कर रहा था, इसलिए प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे थे, क्योंकि चीजों का सप्लाई फाइनाइट था, कि गोल्ड का सप्लाई फाइनाइट है, बिटकॉइन का सप्लाई फाइनाइट है, ये सारी चीजों का ऑल दिस थिंग्स सॉर्ट ऑफ कम इनटू पिक्चर। तो इसके कारण सारे मार्केट्स में इम्पैक्ट करे पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पेटीएम का स्टॉक प्राइस कम गया है, या फिर जोमेटो का स्टॉक प्राइस कम हुआ है। नॉट जस्ट दैट, ग्लोबली नेटफ्लिक्स का स्टॉक प्राइस 75% डाउन है, फेसबुक का स्टॉक प्राइस 55% डाउन है, तो शॉपिफाई का प्राइस 75% डाउन है। ये सारे काफी बड़े बड़े कंपनीज का स्टॉक प्राइस डाउन हुआ है। नाउ दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस फॉर दैट टू सॉर्ट ऑफ हैपन कि even Coinbase जैसा है, तो Coinbase का stock is more than 80% down. It was $350. It is less than $75 right now. So it is sort of gone significantly downwards because एक तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था। सो Coinbase का वैल्यूएशन 2020 में 8 बिलियन था, और 2021 में जब IPO हुआ तो 80 बिलियन था। सो इट वाज अ 10x sort of a jump. नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा ज्यादा कोर्स करेक्ट भी करेगा, बट ओवरऑल इट वुड सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज एज थिंग्स सॉर्ट ऑफ स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग। जब मार्केट गिरता है तो इट डजंट सॉर्ट ऑफ सी एनी बॉटम, इट वुड सॉर्ट ऑफ कीप फॉलोइंग एंड देन इट माइट ओवर स्ट्रेच। बट उसके बाद जब कोर्स करेक्ट करता है, जैसे 2020 का बिटकॉइन क्रैश भी था, $8,000 से $3,800 चले गया था, but it started recovering and then sort of Bitcoin went higher up from there. तो that is out there. तो ये सारी चीजें हैं। तो स्टॉक से काफी ज्यादा कोरिलेट हुआ है बिटकॉइन। पहले अनकोरिलेटेड एसेट माना जाता था,
एक रीजन कोरिलेशन का ये भी है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ सॉर्ट ऑफ कम इन, जैसे हम बोलते थे कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन हो रहा है, ये इंस्टीट्यूशन आ रही है, वो इंस्टीट्यूशन आ रही है। अब इंस्टीट्यूशंस के पास 100 रुपए अगर अलोकेट करने के लिए होता है, वो 90 रुपीज स्टॉक्स में डाल रहा है, 10 रुपए बिटकॉइन या इस सब मार्केट्स में डाल रहा है। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों जगह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट सॉर्ट ऑफ हैपनिंग, एंड इंस्टीट्यूशनल मनी इज आल्सो significant portion of the market. पहले बस रिटेल होता था, तो it was uncorrelated to basically the entire sort of market class that is out there. तो ये सारी चीजें हैं. I'll try and sort of look at a few questions. I'll let Sanket add a few things, and then I'll sort of Yeah, just look at a few questions. I think you mentioned that part where uh, the countries get destabilized when people are hit at the food or the security state. Abhi we are looking at definitely a few countries. Sri Lanka में ऐसा हो रहा है. A lot of riots are going on. It's mostly complaining about the food prices going through the roof. In 1 month, they're seeing prices double, triple. Same is happening with Turkey also. वहाँ पर दिन भर दिन प्राइस ज्यादा हो रहा है, and we saw this with Venezuela also. So definitely, I think that as you mentioned, is a catalyst for a regime change, or at least an internal conflict. And आप जैसे भी महंगाई बढ़ रही है, mostly because the war has also contributed, being Ukraine being the breadbasket of Europe, and Russia being the oil supplier of second highest output of oil. Uh, with them being on war and a lot of embargoes on both the sides, uh, definitely a lot of supply chain issues are going on, and उससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. So I think those are definitely huge factors into all this. So Right. do you think it will, this will ease over time, or how do you think this will play out? Right. So market bearish है. मतलब there is absolutely no doubt. अगर आपको कोई अभी भी बुल साइकिल या वो सब बोल रहा है तो he is wrong. We are in a bear market. There is no doubt about it. It would sort of recover. There is absolutely no doubt कि ये चीजें recover करेंगी. I'm not talking about a specific coin, but the market. Bitcoin would cross $65,000 again, right? क्योंकि सारे मार्केट्स, दुनिया के सारे मार्केट्स हमेशा अप ट्रेंड में होते हैं. क्यों अप ट्रेंड में होते हैं? क्योंकि लोग काम करते हैं. लोग काम करते हैं. जैसे रिलायंस में लोग हैं, लोग काम करते हैं. फ्लिपकार्ट में लोग हैं, लोग काम करते हैं. लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है तो उससे कुछ चीजें बनती है. उसके कारण अभी अगर लोग बाय नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दी, बट ओवरऑल ट्रेंड तो ऑनलाइन शॉपिंग का अपवर्ड्स है. एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से आपका लॉन्ग टर्म आप डिसीजन नहीं ले सकते. शॉर्ट टर्म के बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लॉन्ग टर्म करिए. इन्वेस्टमेंट के साइकिल से अगर देख रहे हो तो बिटकॉइन एसआईपी जिंदाबाद है. मतलब है, था, रहेगा. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. आई विल से द सेम विद इथेरियम एज वेल. इथेरियम का मर्ज भी आ रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इथेरियम वुड सॉर्ट ऑफ पिक अप. मार्केट कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट 1.5 month might remain bearish, क्योंकि फेड का टाइटनिंग जस्ट शुरू हुआ है, अप्रैल 15 से शुरू हुआ है. तो मार्केट को समझने में देर लगती है. मार्केट को जब चीजें समझ जाती है, देन मार्केट सॉर्ट ऑफ अडैप्ट्स टू इट एंड देन काइंड ऑफ फैक्टर्स इन द प्राइस. ये पहली बार टाइटनिंग हो रही थी, तो इसलिए क्लैरिटी है नहीं कि कितना टाइटनिंग होगा, क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा. वंस मार्केट स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग, वॉर के वक्त भी देखा होगा, जिस दिन वॉर हुआ था उस दिन प्राइसेस डिप हुए, उसके अगले दिन से प्राइसेस स्टार्टेड रिकवरिंग, बिकॉज अनसर्टेनिटी के बेसिस पे मार्केट ऑपरेट नहीं करता. जब भी अनसर्टेनिटी होती है मार्केट डिप करेगा. अनसर्टेनिटी जब खत्म होने लगती है, मार्केट स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम देयर, राइट. सो वॉर, पहले ये था कि वॉर होगा नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी. वॉर जैसे ही हो गया, मार्केट्स देन सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड काइंड ऑफ गेटिंग बेटर. उस दिन काफी डिप हुआ और फिर इट स्टार्टेड गेटिंग बेटर फ्रॉम देयर. तो अभी वो अनसर्टेनिटी फेड के टाइटनिंग के बारे में, बेसिस पॉइंट हाइक कितना होगा, रेट्स 50%, 50 पॉइंट्स होगा, 75 होगा, 25 होगा, वो सब क्लैरिटी के कारण वो होगा. 1-2 मंथ जैसे वो ऑपरेट करने के बाद मार्केट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये चीज हो रही है,
उसके basis पे it will sort of start doing things. I'll sort of take a few questions. One is people asking whether Luna would recover. It is very hard to predict about Luna. I'm saying about the market. Interesting चीज ये भी है कि we are closer to the next Bitcoin halving than we are to the last Bitcoin halving. So Bitcoin halving भी आ रही है, 2 साल में आएगी, ठीक है. तो अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल वगैरह है तो बी पॉजिटिव, थिंग्स वुड सॉर्ट ऑफ पिक अप. शॉर्ट टर्म में बेरिश है मार्केट, वी आर इन बेयर मार्केट, तो बेरिश रहेगा. In general, crypto markets have given negative returns in sort of even years like 2014, 2018, 2022. ये जो सारे years है उसमें negative return रहा है crypto का. तो it would be sort of bearish. This year is what it sort of seems. We are halfway through the sort of year, and it has been bearish till now. People are asking a few questions whether on Luna whether it would recover. अगर पेग एस्टैब्लिश होता है तो फिर लूना के रिकवरी के चांसेस है, तब तक बेरिश है. लूना का प्राइस नीचे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स. आप मैकेनिज्म समझिए कि यार लूना मिंट कैसे होता है. तो दैट इज आउट दैट. बीएनएस के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि बीएनएस की प्राइस 1/100 कैसे हुई है. हम सर्कुलेशन 100x कर दी है, इसीलिए बीएनएस टोकन इज स्टिल सॉर्ट ऑफ जस्ट 50-60% ऑफ इट्स हाइज as compared to most stable coins which are like 90, 95, 99% of their highs. BNS is still far stable. We are sort of working on a few things. तो BNS की चीजें will sort of release a few utilities और उनके announcement करेंगे. BNSD के ऊपर भी कुछ questions है. BNSD का भी we are sort of working on a few things on that. BNSD की नई वेबसाइट आ रही है. ये बीच में स्टॉल हो गया था because a lot of changes happened in the Indian sort of क्रिप्टो एनवायरनमेंट, टैक्सेशन वाली चीजें चेंज हुई है, जिसके कारण बैकएंड लेवल पे भी हमें काफी चीजें चेंज करनी पड़ती है. काफी सारे चीजें रिपोर्टिंग और वो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड टू इंश्योर कि सारे यूजर्स के लिए वो कंप्लायंट वे में रिपोर्ट्स वगैरह आगे चल के बनने लग जाएगी. बीएनएसडी के ऊपर काम हो रहा है. उसके कुछ यूटिलिटीज वगैरह अनाउंस होंगे एंड पीपल वुड गेट टू नो दैट. बाकी एक्सचेंजेस पे बीएनएस का माइग्रेशन कब होगा, दैट इज सॉर्ट ऑफ इन प्रोग्रेस. In the next 3 to 4 weeks, everything should be sort of be done there. I'm still looking at a few question. Are we going to Dubai? Right now, no. We are going to stick around in India. We're going to help users sort of navigate this. इंडिया में अभी लग रहा होगा कि यार सिचुएशन खराब है. इंडिया ऐसा मार्केट है कि यार दरवाजा बंद हो जाता है लेकिन खिड़की खुली रहती है. So we'll have a solution in place. चीजें improve होंगी. यार ऐसा सोच लो कि यार इससे खराब नहीं हो सकता है. मतलब when RBI ban was also there, we are like यार इससे खराब नहीं हो सकता. So we'll keep operating. So right now might be the worst point in time, but इससे खराब नहीं हो सकता. तो things would get better from here. अगर किसी का portfolio loss भी हुआ है, they can sort of look at figuring out things. आप क्रिप्टो में जॉब ले सकते हो, क्रिप्टो के फॉर्म में कुछ अर्न कर सकते हो. ये सारे काफी सारे एवेन्यूज होते हैं, बस ट्रेडिंग एक एवेन्यू नहीं होता है. यू शुड नॉट सॉर्ट ऑफ लूज होप. चीजें रिकवर करती है. बेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो वाइप ऑफ होता है, 90% डाउन जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल. चीजें इंप्रूव भी करती है. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ फाइट इट आउट. It's not going to be that easy as 2021 to make money, but it's not going to be that कि यार बन ही नहीं पाएगा. मतलब things would sort of get back again from there. Right. So just to clarify on Luna, at least on the short term, जब तक a peg establish नहीं होता है, the supply of Luna will keep on increasing. So for at least a little medium short to mid term, I think Luna का price would, like as Gaurav mentioned, थोड़ा नीचे जाएगा. But the team's main goal right now is to bring back the peg. वो 50 सेंट से अभी उसे $1 कैसे भी लाना है. So उनका सिर्फ एक ही गोल है, वो उसे लाना है. So that is where they are heading. So the volatility is usually absorbed by the Luna token. I'm seeing a lot of super chats from Rishi Jan. Hey Rishi, if you have any question, let us know. Right. I see a question from Nitin. I lost nearly huge amount from past 1 month. Can I hold or sell crypto? नितिन, अगर वैसा कुछ है जहाँ पे
फंडामेंटली कोई चीज ब्रेक हो गई है, जैसे लूना के केस में थे सॉर्ट ऑफ सीइंग, आप उसे एग्जिट करके रीएंटर कर सकते हो लेटर व्हेन थिंग्स सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइज। अल्टरनेटिवली अगर वो कॉइन्स के फॉर्म में और कोई अल्ट कॉइन्स वगैरह उस पे आप स्टेक करके उसका कॉइन्स का अमाउंट बढ़ाइए सो दैट योर एवरेज प्राइस सॉर्ट ऑफ गोज डाउन। इफ यू आर सो नेवर सॉर्ट ऑफ चेंज बिहेवियर्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो behave as a long term investor. If you're sort of short term trader, act as a short term sort of trader and trade on sort of information that's sort of coming. Mansoor is asking which coin should I do, SIP, BTC and Ether. So these two are stable. That's precisely why Bitdroplet में हम लोग multiple options देते नहीं हैं, क्योंकि these always sort of hold इनके values हमेशा statistically prove भी कर चुके हैं कि यार they remain above the average SIP price for more than 80-85% of the time. And that's why we don't sort of give random SIP options like some other players sort of give that are giving in the Indian market right now. We are the first ones to introduce SIP. And we have sort of studied this a lot more carefully, and that's why I'm not opened up option कि आप किसी भी coin में SIP कर सकते हो. तो other platforms might sort of give that, but we are sort of a lot more concerned about the users and will never sort of give that sort of an option. एक आ रहा है crypto buy or sell. So I think आपका strategies जैसा भी है, you can try and stick to it right now. If you we would always suggest have a strategy in place beforehand and try to follow it as thoroughly as possible, because हम क्या देखते हैं कि few people are emotion is a pretty strong driver here. तो कुछ लोगों को लगता है that अभी मेरा strategy काम करना stop हो गया है, because you have probably spent a lot of time to understand it and make strategies. But if you have done thorough research, then you should probably stick to it, because these are testing times. So abhi you should probably try to hold on to your strategy as much as possible. Sure. So I think we've kind of given a brief overview in the market. We'll let users suggest again next time if they want to sort of hear anything from us. If you have any comments, if you have any shikayate, any problems in terms of the stream, let us know. We'll try and improve. And any specific topic if you want to sort of take us. कोई भी टॉपिक हो सकता है, NFTs हो सकता है, डेफाई हो सकता है, जैसे लूना का आज हमने लिया because we started getting a lot of questions on our tickets, chats and everywhere. So we like it's better addressed on a larger forum. ऐसा कोई भी चीज होगा, we'll be more than happy to sort of take it, answer it, address it. And thanks a lot for tuning in. Stay with the crypto market. Crypto is here to stay, irrespective of whatever happens. India में भी crypto रहेगा, and it would thrive. That's a promise. So we'll ensure कि things would come. अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, चीजें, ऑप्शंस आपके पास रहेंगे तो you would be able to sort of take exposure into crypto. And thanks a lot for tuning in. Yeah, thanks a lot. We hope to bring you more streams later. Bye.